Hello students, this is Pratima Vishwakarma here. Welcome you all in Science Online class. Students, I hope you all are fit and fine and enjoying my video also. Yes or no? Okay students. Okay. Now, students, in our last video what we have seen that kinds of vitamins. Okay, so what are the kinds of vitamins? A, B, C, D, E, K. These are the kinds of vitamins. Okay, so vitamin A keeps eyes and skin healthy. Vitamin B helps in releasing energy and formation of RBC. What is RBC is here? RBC stands for red blood cell. Vitamin C keeps teeth, gum and bones healthy. Vitamin D makes our bones and teeth strong. Vitamin E keeps our body and skin healthy. And the last vitamin, that is vitamin K. Vitamin K helps in clotting of blood. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द काइंड्स ऑफ विटामिन्स और हमने इनके सोर्सेज भी देखे थे. ओके, सो सोर्सेज भी देखे थे. नाउ स्टूडेंट्स, विटामिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी. ओके, ये जो विटामिन्स है ये सॉल्युबिलिटी की बेस पे भी क्लासिफाइड है. सॉल्युबिलिटी मीन्स व्हाट? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. ओके, okay students, so our today's topic is classification of vitamins. Okay, so vitamins किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है? सॉल्युबिलिटी पे. सॉल्युबिलिटी मीन्स व्हाट? सॉल्युबिलिटी मीन्स जिसमें डिजोल्व होता है. ओके, डिजोल्व. Solubility means dissolved. Okay, so students, vitamins are classified on the basis of their solubility. Okay, so those vitamins which are soluble in water are termed as water soluble vitamins. वह vitamins जो water में dissolve हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? water soluble विटामिन्स. ओके, सो व्हाट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? वह विटामिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं. सॉल्युबल मीन्स व्हाट? डिजोल्व होना. ओके, सो वह विटामिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं या घुल जाते हैं, वह विटामिन जो वाटर में पूरी तरह से मिल जाते हैं, उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड okay, so let's write the definition of this water soluble vitamins. Those vitamins which are soluble in water are called water soluble vitamins. Okay, now second is fat or oil soluble vitamins. Fat or oil soluble vitamins. So vitamins are classified on two, that is first one is water soluble vitamins and second one is fat or oil soluble vitamins. Now what's the definition or how will you define fat or oil soluble vitamins? Those vitamins which are soluble in fat or oil, they are fat or oil soluble vitamins. So let's write here those vitamins those vitamins which are soluble in fat or oil are called fat soluble vitamins. Understood students? Okay, now हमने लास्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ विटामिन्स देखे थे. ओके, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. Okay, so out of these vitamins, which vitamin is water soluble and which vitamins are fat or oil soluble vitamins? So let's write or let's see water soluble vitamins. Okay, so water soluble vitamins are water soluble vitamins are vitamin B and C. Okay, vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins. And what about fat or oil soluble vitamins? Fat or oil soluble vitamins. So except vitamin B and C, all vitamins are fat or oil soluble vitamins. So for example, vitamin A, D, E, K. Okay students, vitamin A, D, E, K. These are fat or oil soluble vitamins and these vitamins are stored in the body fat. These vitamins are stored in body fat. ये
बॉडी की फैट में स्टोर्ड होते हैं, विटामिन ए डी ई के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। Okay students, so these are the classification of vitamins. Now move to next nutrients, that is mineral. Okay, so let's see about mineral. Mineral. Okay, this is our last nutrients found in our food. Okay, so just like vitamin, minerals are also protective food. जैसा vitamins protective food होता है, वैसे ही mineral भी क्या है, protective food है. So mineral are also protective foods. ओके स्टूडेंट्स, मिनरल क्या है, मिनरल भी एक प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक है, हमें कई रोगों से बचाता है। जैसा विटामिन क्या है, विटामिन भी प्रोटेक्टिव फूड है। वाई विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। सो मिनरल आर ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। ये हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है। ओके, दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। नाउ थर्ड पॉइंट, मिनरल आर mineral are required required in a very small quantity like as vitamin। थर्ड पॉइंट है, मिनरल आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसा हमने विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, सो सिमिलरली मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let's see some example of minerals. Example of minerals. So what are the examples of minerals? Like calcium, then sodium, then iron, then iodine, etc. Okay, these are minerals. Okay, calcium, sodium, iron, iodine, then potassium is also there, phosphorus is also there. Okay, these are minerals. Okay students, now let's say about all these minerals one by one. Okay student, so let's see, or let's study about some minerals. Okay, so minerals and their functions and also their sources. Okay students, so first one, first mineral is iron. Iron. Now what's the function of this iron? Okay, iron का क्या function है, तो iron का function क्या होता है, iron function is for the formation of hemoglobin, hemoglobin। ओके, ये हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है आयरन। तो आयरन का फंक्शन क्या है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ओके, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड विच कंटेन प्रोटीन्स आर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज द फंक्शन ऑफ आयरन। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयरन? ओके, तो सोर्सेज ऑफ आयरन आर किडनी, लीवर, eggs, then groundnut, next jaggery, next spinach, etc. Okay, these are the sources of iron. इन सभी चीज़ों से आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, सो आयरन, द फंक्शन ऑफ आयरन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, एंड मैंने आपको हीमोग्लोबिन का फंक्शन भी बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम lungs to body cell। Okay, body cell lungs to body cell। Understood students? Okay, now move to second minerals. Second mineral is iodine। Okay, now what is the function of iodine? For the formation of, ये क्या form करता है, ये प्रोटीन फॉर्म करता है। Okay, so for the formation of protein, the function of iodine is for the formation of protein। ओके, नाउ अब हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन? फिश, नेक्स्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं, कैसा नमक होता है, आयोडीन। ओके,
and next one is seafood. Third mineral is third one calcium. Calcium. These are the minerals. These are not vitamins. Okay, don't get confused between vitamins and minerals. Vitamins are only A, B, C, D, E, K. Okay, and iron, iodine, calcium, potassium, phosphorus. These are minerals. Okay. Now, what are the function of calcium? Calcium. The function for calcium is for making, making bones and teeth. Okay, and also helps in blood clotting. Blood clotting. ओके, सो कैल्शियम का फंक्शन क्या है? ये हमारे बोन्स और टीथ को बनाए रखता है और ब्लड क्लॉट में भी हेल्प करता है कैल्शियम. ओके, अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम्स आर मिल्क. ओके, नेक्स्ट मिल्क प्रोडक्ट, जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उससे भी हमें कैल्शियम मिलता है. नेक्स्ट वन इज बीन्स. नेक्स्ट होल ग्राम. ओके, नेक्स्ट cereals, meat, fish, and also from green leafy vegetables. Green leafy vegetables. Okay, so these are the sources of calcium. Now move to next minerals. Next mineral, fourth one, that is phosphorus. Phosphorus. Okay. Now what is the function of phosphorus? It helps in formation of bones and teeth. हड्डियाँ और दांत को फॉर्म करता है, that is phosphorus. Okay, and what are the sources of phosphorus? The sources of phosphorus are milk, next bajra, ragi, nuts, then green vegetables, next fish, etc. Okay, so these are the minerals. So mineral क्या है? Minerals are protective food होते हैं. Okay, it helps in body functioning. Okay, and they are required in small quantities. Okay, so these are all about minerals. And what are the example of minerals? Example of minerals are iron, iodine, calcium, and phosphorus. Understood, students? Okay, now beside all these nutrients, there are two more things which play very important role in our diet. What are they? Do you remember what are they? If you remember, then write your answer in comment box. Okay, students, so the two things are roughage and water. So first we will study about water. Water. Do you think you can survive without water? No, we cannot survive without water. Even an adult is unable to survive for more than a week without water. जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो भी एक हफ्ते तक पानी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो फूड के बिना रह सकते हैं. ओके, अगर एक हफ्ते तक फूड ना दिया जाए रह सकते हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते तक पानी नहीं मिलेगा एडल्ट को तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. Okay, students, so and also students, tell me, we get water from where? Okay, or we can say, what are the sources of water? You all know the sources of water are rain, lakes, ponds. Yes or no? So students, we get water from the liquids we drink. Okay, for example, water, जो हम पानी पीते हैं, जो हम दूध पीते हैं, जो हम चाय पीते हैं, हमें इनसे भी क्या मिलता है? लिक्विड मिलता है. Okay, even also the fruit and fresh vegetables we eat contain plenty of water. जो भी हम फ्रूट खाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल खाते हैं, इन सभी में भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड वाइल कुकिंग ऑल्सो वी एड लॉट ऑफ वाटर इन टू फूड. ओके, जब हम खाना पकाते हैं तो हम उसमें भी बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं, बहुत सारा पानी उसमें डालते हैं. ठीक है, सो हियर वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वाटर? So let's see, the function of water is it it helps to move substances within the body within the body. Okay students, so this is the first function. Water क्या करता है? ये
सब्सटेंस को मूव करता है बॉडी के अंदर ही, ठीक है। जो भी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसको मूव करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेकंड पॉइंट, this was the first point. Okay, now second function is what? It helps to absorb nutrients nutrients from food. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को फूड से एब्जॉर्ब करता है, वाटर। ओके, वाटर क्या करता है, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यस, ओके। नाउ थर्ड फंक्शन इज, third function, it helps in throwing throwing out wastes throwing out wastes such as urine and sweat urine and sweat from the body from the body। ओके, तो ये वाटर और किस में हेल्प करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल जैसे टॉयलेट हो गया, पसीना जो हमको निकलता है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ वाटर। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ come to the last, that is rough edge. Okay students, so rough edge is also called as dietary fiber dietary fiber. So let's learn about rough edge. So roughage, or we can say dietary fiber. Students, plant parts have a carbohydrate that is called cellulose. प्लांट पार्ट्स के पास कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लांट पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। और इसी सेलुलोज को हम क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस सेलुलोज इज नोन एज फाइबर और रफेज। इसी सेलुलोज को रफेज या फाइबर बोला जाता है, ठीक है। सो फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स बट इट इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अगर हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है हमारे फूड में, हमारे डाइट में, ठीक है। सो इसका फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ओके, सो आई एम टेलिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ रफेज और डाइटरी फाइबर। जो भी फूड हम खाते हैं, प्लांट पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके, प्लांट पार्ट्स हैव अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड सेलुलोज एंड वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस सेलुलोज, ठीक है, हम इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डाइट। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ रफेज और व्हाट द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, लेट्स सी। सो फंक्शन ऑफ रफेज और डाइटरी फाइबर्स आर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन ओके, कब्ज को रोकता है। और दूसरा, सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड द थर्ड थिंग इट हेल्प्स टू गेट rid of undigested food undigested food। ओके स्टूडेंट्स, हमें अपने डाइट में रफेज जरूर रखना चाहिए। ओके, सो व्हाट आर द फाइबरस फूड आइटम्स विच हैव फाइबर्स। ओके, ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनमें फाइबर्स बहुत होते हैं। सो लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ फाइबरस फूड आइटम। सोर्सेज ऑफ फूड फाइबरस फूड आइटम। ओके, तो ऐसे फूड जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं उनका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और जो खाना पचा नहीं होता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसको निकालने में भी हेल्प करता है, और ये कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबरस फूड आइटम। सो सोर्सेज ऑफ फाइबरस फूड आइटम्स आर होल पल्स, जितनी भी दाल होती हैं उसमें फाइबर होते हैं। देन एप्पल में फाइबर होते हैं। देन पियर, नेक्स्ट कैरेट, रेडिश,
next cucumber, next we have cauliflower, okay, etc. Yes, no, students. So these are the fibrous food items, and these fibrous food items helps in all these things. Okay, तो हमें हमारे डाइट में fibrous food जरूर रखना चाहिए. ठीक है, this helps in digestion, this helps to get rid of undigested food, and it prevent constipation. Okay, students. So fiber does not provide any nutrient, but it is essential for proper functioning of digestive system. ठीक है. Okay, students. So these are all about nutrients which is found in our food, students. And one more thing I want to tell you about this water. Our 70% of our body is made up of water. ठीक है, हमारे बॉडी का 70% भाग पानी से बना हुआ है. 70% of human body is made up of water. And students, our body needs how many liters of water every day? Do you know? If you know the answer of this question, then write your answer in comment box. Okay. Again, listen question carefully. Our body needs how many liters of water every day? So write your answer in comment box. Okay. And students, जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन शेयर. Okay, you can share your doubts to me on my personal number. Now move to our second last topic of this chapter, that is balanced diet. Okay, so this is our next topic, that is balanced diet. So students, what do you mean by diet? Diet क्या है? So the food we normally consume in a day is called diet. Diet क्या होता है? जो food हम दिन भर में लेते हैं उसे ही हम diet कहते हैं. Okay, so the food consume we consume in a day is called diet. उसे ही हम क्या कहते हैं? Diet कहते हैं. Okay, so our diet must contain sufficient quantities of different components of food. Different components of food जैसे हमने देखा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन. ओके, सो हमारा जो भोजन है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सभी तरह के कंपोनेंट्स ऑफ फूड होने चाहिए, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के विकास के लिए, हमारे अच्छी हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए हमारे जो भोजन होते हैं, हमारी जो डाइट होते हैं उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अगर क्या होगा, अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा उसमें, तो क्या होगा? हमारी हेल्थ अच्छी होगी, खराब होगी? हमारी हेल्थ खराब होगी. इसीलिए हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? अब बैलेंस डाइट क्या है? सो बैलेंस डाइट इज डिफाइंड एज अ डाइट a diet containing all the nutrients all the nutrients in adequate quantities in adequate quantities is called बैलेंस डाइट. जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ओके, सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होने चाहिए. ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ सो इन अ बैलेंस डाइट, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन. और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड हमने दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, एक विटामिन और एक minerals. So these energy giving food, body building food and protective foods are present in proper quantities in our balanced diet. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी उतनी ही मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन भी उतनी मात्रा में, फैट भी उतने ही, विटामिन भी उतना ही, मिनरल भी उतना ही अमाउंट में होना चाहिए. इन सबके अलावा रफेज ऑफ वाटर भी होना चाहिए. ओके, हमारे बैलेंस डाइट में. नाउ अब इसका फंक्शन क्या है? व्हाट द फंक्शन प्लेड बाय दिस बैलेंस डाइट? Okay, so it provide what it provide. So let's see one by one. First point, it provide energy. Okay,
हम जो भी खाना खाएंगे, हमारा जो बैलेंस डाइट होगा, हम उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स इक्वली होने चाहिए। ओके, अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसमें से कम होगा, या हम कह सकते हैं लैक और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट लीड्स टू अ पुअर हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो बैलेंस डाइट प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इट शुड प्रोवाइड it should provide materials to repair repair the damaged damaged cells। ओके, जो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी ये मटेरियल प्रोवाइड करता है। ओके, बैलेंस्ड डाइट। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट अबाउट बैलेंस्ड डाइट इज थर्ड पॉइंट, it provide all nutrients। ओके, ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड मटेरियल्स टू रिपेयर डैमेज्ड cells। So students, balanced diet is what? A diet containing all the nutrients in adequate quantities। Okay, now students, जो सही तरीके से खाना खाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका पकना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स, अगर खाना हम पूरी तरह से पका रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि खाना पकाते वक्त भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं? यस स्टूडेंट्स, ऐसा होता है। और तो और स्टूडेंट्स, हमें कोई भी चीज़ काटने के पहले धुलना चाहिए, काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए। काटने के बाद अगर हम धुलते हैं तो क्या होता है, कुछ विटामिन उसके ख़त्म हो जाते हैं, या कुछ न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्किन्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की जो स्किन्स होते हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो अगर हम उनको काटने के बाद धुलेंगे तो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही हम जब चावल बनाने जाते हैं या दाल बनाने जाते हैं तो उसको भी हम खूब धुलते हैं, बहुत बार धुलते हैं। तो अगर हम बहुत बार उसको धुलेंगे तो उसमें से भी क्या हो रहा है, कुछ विटामिन और मिनरल्स ख़त्म हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो एट द सेम टाइम कुकिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अगर खाना ज़्यादा देर तक पकेगा तो उसकी कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और तो और हम खाना पकाते वक्त उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कुछ मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हियर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, do you know which vitamins get easily destroyed by heat during cooking? खाना पकाते वक्त कौन सा विटामिन जल्दी खत्म हो जाता है हीट से? Do you know the answer of this question? Okay, if you don't know the answer, then listen answer carefully. Answer is vitamin C. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Vitamin C खत्म हो जाता है खाना पकाते वक्त, किससे? हीट से। Okay, so this is all about balanced diet. One more thing I would like to add about oily food and spicy food. So let's talk about oily food and spicy food. हम सभी रोस्टेड फूड खाते हैं, डीप फ्राइड फूड खाते हैं। ओके, सो दीज डीप फ्राइड एंड रोस्टेड फूड्स दे लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। सो ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फूड को हमें नहीं खाना चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ऑयली एंड स्पाइसी फूड, ऑयली एंड स्पाइसी फूड, दे आर टेस्टी। ये कैसे होते हैं, टेस्टी होते हैं, बट दे आर हार्मफुल। ओके, दे आर हार्मफुल। तो ऐसे फूड को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे फूड को हमें रेगुलर फूड में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऑयली फूड हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, या तो डीप फ्राइड फूड, जैसे हम समोसा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं। ओके, आपका बर्गर हो गया। ठीक है, तो ऐसे फूड टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन ये ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए। ऐसे फूड को हमें रेगुलर फूड में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे आर हार्मफुल। ओके, एंड ऑयली, और अगर हम ऑयली फूड खाएंगे या फ्राइड फूड खाएंगे, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमने इसको खाया, ऑयली फूड को या फ्राइड फूड को, तो क्या होगा, इट कॉजेज ओबेसिटी। व्हाट इट कॉज, इट कॉज ओबेसिटी। व्हाट इज दिस ओबेसिटी? इसको हम हिंदी में मोटापा बोलते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी अवॉइड ओबेसिटी? ओबेसिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, बाय डूइंग रेगुलर exercise. Second thing, by avoiding fat foods.
अगर हम फैट फूड ना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हम ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं, मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओबेसिटी इज़ अ हेल्थ हजार्ड। ओबेसिटी क्या है? एक हेल्थ हजार्ड है, ठीक है। ओबेसिटी इज़ अ हेल्थ हजार्ड। इससे हमें बीमारियां भी होती हैं। जो मोटापा है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इससे हमें बीमारियां होती हैं। और क्या क्या होता है बीमारी? फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ओके। थर्ड थिंग, diabetes, okay. So these are the disease we suffer from this obesity. Okay, so obesity is a health hazard. And how we avoid obesity? By doing regular exercise, by avoiding fat foods. Okay, obesity हमें होता कैसे है, मोटापा हमें कैसे हो सकता है? By eating oily food or deep fried food or roasted food. ठीक है स्टूडेंट्स, so these are about balanced diet. Now move to last topic of this chapter, that is deficiency diseases. Okay students, so now the last topic of this chapter is deficiency diseases. Deficiency diseases. Okay, so deficiency disease, deficiency means what? Lack, मतलब कमी होना, ठीक है। So how we define deficiency diseases? So diseases which occur due to the deficiency of one or more nutrients in the diet are called deficiency disease. Diseases diseases which occur due to deficiency of one or more nutrient one or more nutrients in the diet in the diet are called deficiency diseases. कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होगी हमारे डाइट में तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। ऐसे डिजीज को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में कम हो गया तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? So let's see what happen if carbohydrate is deficient in diet, in our diet. So deficiency of carbohydrate, deficiency of carbohydrate. What happen if carbohydrates are in a very small amount, or if there is no carbohydrate in our diet, then what will be happen? Okay, so see here, carbohydrate हमने देखा था, carbohydrate are the main sources of energy. Okay, so what happen if carbohydrate is not in our diet, or deficiency of carbohydrate in the diet leads to what? So क्या होगा इससे? बॉडी वीकनेस, बॉडी वीकनेस। ओके, हमारी बॉडी कैसी होगी? कमज़ोर हो जाएगी। एंड लॉस ऑफ स्टैमिना, स्टैमिना भी नहीं रहेगा हमारी बॉडी में। ओके, so these are the two symptoms. If there is no carbohydrate in our diet, then it leads to body weakness and loss of stamina. Okay, this is first nutrient. Now come to second nutrient. What happen if there is no protein in our diet? So deficiency of protein, deficiency of protein. So deficiency of protein, it leads to what? It leads to stunted growth, stunted growth। ओके, स्टंटेड ग्रोथ मीन्स व्हाट? विकास नहीं हो पाएगा अच्छे से। सेकंड थिंग, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। हमारी जो हेयर का कलर है वो कैसा हो जाएगा? डिसकलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में स्वेलिंग आ जाएंगी। नेक्स्ट, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम होगा। ओके, नेक्स्ट, डायरिया। Okay students, so these are the deficiency of proteins. If there is no protein in our diet, will leads to stunted growth, discoloration of hair, swelling of face, skin problems and diarrhea. Okay, now move to third nutrients, that is deficiency of vitamins and minerals.
Okay students, now let's see what are the deficiency of vitamins and minerals. So what happen if vitamin A is deficient in our diet? So diseases, loss of vision and symptoms are poor vision, कम दिखाई देगा, loss of vision in darkness, ठीक है, अंधेरे में भी आपको कम दिखाई देगा, sometimes complete loss of vision, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है. Now deficiency of vitamin B1 in our diet, disease is beriberi, disease caused by deficiency of vitamin B1 is beriberi. Now इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके symptoms क्या होते हैं? Symptoms होते हैं weak muscle and very little energy to work. मसल्स क्या होते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और एनर्जी भी उतनी नहीं रह जाती, ठीक है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है. अब स्कर्वी को कैसे हम पहचान सकते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? गम्स, ब्लीडिंग गम्स, गम्स जो मसूड़ होते हैं उनमें से खून निकलता है, एंड जो वाउंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, जो भी चोट हमें लगी रहती है उसको भरने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड रिकेट्स. नाउ रिकेट्स कैसे हम पहचान सकते हैं? बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, सो डिजीज इज बोन एंड टूथ डिके, इसमें बोन और टूथ दोनों ही सड़ने लगते हैं, ठीक है. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है. अब ग्वाइटर को आप कैसे पहचान सकते हैं? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो गले में सूजन आ जाती है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट वन इज आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज अनीमिया, ठीक है. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया? वीकनेस, कमजोरी आना, ठीक है. So this is all about your chapter. Students, I hope you understand all the chapters clearly, and also I have covered all the topics. If you have any doubt anywhere, you can ask me. Okay students, and also students, I hope you have enjoyed this topic, today's topic, and also this chapter. So students, again I'm saying, if you have any doubt you can ask me. Now students, we'll meet you in next video, in our next class. Till then, keep watching my videos. Thank you and have a nice day.